আপনারা সঙ্গে থাকুন। আমি একটি কেস নিয়েছি, কোর্টের থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করলাম। মেয়েটি হিন্দু, মেয়েটি একটি মুসলিম ছেলের সাথে বসিরহাটে বাড়ি, তাই তো? ছেলের বসিরহাট মালঞ্চতে বাড়ি। তো আমি বাড়িতেই ছিলাম, তো একটু আগে কোর্টের থেকে একটু ইনফরমেশন গেল, সেই কারণে আমি ছুটে এসেছি। মেয়েটিকে কোনো রকম ভাবে কোর্টের থেকে রিকভারি, কোর্ট থেকে নিয়ে এসে আমি আমার চেম্বারে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা সাথে থাকুন। জোর করে মেয়েটিকে টোটোতে আমি, তার বাড়ির লোকজন আছে, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের বাড়ির লোকের সম্মতিতে। কবে পালিয়ে গেছিল? আপনারা ফোনটা এবার রাখুন, ঠিক আছে? নাম কি তোমার? মার্কসটা নামাও, জোরে বলো, নাম বলো। তোমার 1.5 বছর। হ্যাঁ, 1.5 বছর। 1.5 বছর। কিসের মাধ্যমে যোগাযোগ? ফেসবুক। বললাম। আচ্ছা, ছেলে কি করে? ব্যবসা করে। ব্যবসা করে। কবে পালিয়ে গেছো? 1 মাস হলো। হ্যাঁ, 1 মাস। তোমার নাম কি বললে? দাস। কোর্টের মধ্যে একটা অন্যরকম ব্যাপার হয়ে যাবে। আমরা কোর্টের মধ্যে গেলে গন্ডগোল কাটতে হবে। ওখানে পুলিশ আছে, সবাই আছে, পুরো সাপোর্ট পেয়ে যাবে। আসছে তো নতুন বাস স্ট্যান্ড, বলুন। না, ওইদিকে ওই যে বড় সাইনবোর্ডটা আছে, দ্বিতীয় সাইনবোর্ডটা ওইখানে। চলো ডান দিকে। হ্যাঁ, চার্জ বেশি নেই। তুমি যে ছেলেটিকে ভালোবেসেছো, সেই ছেলেটির জীবন তো তুমি নষ্ট করতে পারো না। তার সাথে তো যাওয়া যেতে পারে না। তুমি যেটা করছো, আজকে ছেলে খেলামো করছো, কালকে তুমি আবার বেরিয়ে চলে আসবে। আজকে তুমি 19 বছর বলে তোমাকে অফিসে নিয়ে এলাম, 18 বছর হলে আমি কোর্টেই কথা বলতাম তোমার সাথে, 18 বছর পূর্ণ না হলে। তুমি বুঝতে পেরেছো কি বলছি? হ্যাঁ, তুমি কি করতে চাইছো বলো এখন? ছেলের সাথে যাওয়া যাবে না, তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে হোমে থাকো। হোমে থাকবে। তোমার একটা ভালোবাসার সময় তোমার মনে পড়ে। তোমার বয়স কত? হ্যাঁ, 19। তুমি এই যে ছেলেটিকে বিয়ে করেছো, ছেলেটি কি নাম? ওর দিকে ধরো ক্যামেরা। হ্যাঁ, জোরে বলো। আচ্ছা, তুমি ধরো তুমি একটা হিন্দু ঘরের মেয়ে, তুমি কেন একটা মুসলিম ঘরের ছেলেকে বিয়ে করলে? ভালোবেসে বিয়ে করেছো। এই যে ভালোবেসে যে বিয়ে করেছো, তুমি তো একটা হিন্দু ঘরের মেয়ে, তাই না? তোমার বয়স হয়ে গেছে, আমরা কেউ তোমাকে আটকাতে পারি না, এটা তুমি জানো, তাই তো? তোমাকে তো আমি একজন সমাজসেবিকা। আমার নাম কি বলতো? বাবলি মুখার্জি। কার সাথে কথা বলছো তুমি? কে আমি? কোনো পলিটিক্যাল লোক না কিন্তু আমি, ঠিক আছে? একজন সমাজসেবিকা। এটা আমার অফিস, তোমাকে আমি অফিসে নিয়ে এসেছি, যেহেতু আমাকে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে, বাড়ির লোক ডেকেছে, তার জন্য আমি গেছি, ঠিক আছে? এই মতো পরিস্থিতিতে তুমি কি চাইছো? কেন? ইচ্ছা বললে তো বিয়ে করবো, আমার সমাজ তাকে মেনে নেবে না, বা তার সমাজ, এটা তোমার মনে হলো না? ফেসবুকের মাধ্যমে ভালোবাসা হলো, 1.5 বছরের ভালোবাসা, কি এমন বুঝলে যে তুমি চলে গেলে তার সাথে? ফেসবুকের মাধ্যমে কি এমন ভালোবাসা হলো যে তুমি চলে গেলে 1.5 বছরে? বলো, ভালোবাসাটা কোন পর্যায়ে এসেছে যে 1.5 বছরে তুমি ফেসবুকে কথা বলে তুমি একটি ছেলের সাথে, তুমি চেনো না জানো না, তার সাথে তুমি বেরিয়ে চলে গেলে? এর আগে কোথাও দেখা করতে গেছো? কোথায় দেখা করতে গেছো? রানাঘাটে এসেছিল। তোমার বাড়ি কোথায়? বানপুর। তুমি বানপুর থেকে রানাঘাটে এসেছিলে দেখা করতে? কদিন দেখা করেছো? ছেলেটির ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে? ছেলেটির ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে? নাম্বার বলো কত? आपने बहुत आवाज़ सुना, आपने टोटो सुना, आपने जय श्री राम सुना,
आपने एक लड़की का भाषा सुना, आपने बाबली दी को सुना। इस सुनने के बाहर भी इतिहास का बहुत कुछ रहता है जो हम लोग देखते नहीं हैं। देखने के लिए एक शांत मन चाहिए, देश के प्रति भालोबासा चाहिए, और कोई भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए क्राइम कंट्रोल चाहिए। आज तक हम लोग क्राइम पेट्रोल देखते आए हैं। माने किसी का देहांत हो गया, उसको लेकर एक केस हुआ, तो वो केस कैसे सॉल्व किया गया, माने एक जन मरने के बाद केस कैसे सॉल्व किया गया। इधर हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी का डेथ ना हो, क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। अब क्राइम को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, ये क्वेश्चन हम आप लोग से सभी से पूछ रहे हैं। क्राइम को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोई भी चीज़ होता है तो उसको तो कंट्रोल किया ही जा सकता है। कोई जानबूझकर तो किसी का खून करता नहीं है, कोई जानबूझकर तो घर से भागता नहीं है, कोई जानबूझकर शादी तो नहीं करता है। उसको अच्छा लगता है तभी तो शादी होता है। आज के केस से एक चीज़ उभर के आया कि इंडियन लड़की लोग, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो दलित हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वो लोग घर से भाग जाती हैं। घर से भागती ही क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो इस केस में यही आएगा, एक लड़की जो घर में बड़ी होती है, पलती हैं, तो घर से भागती क्यों हैं? इसमें क्या वो लड़की का ही दोष होता है? आपने रामायण अगर पढ़ा होगा तो सीता जी को भी कोई उठा कर ले गया था। जब लक्ष्मण को उनको सिक्योरिटी देना था, लक्ष्मण वो सिक्योरिटी दे नहीं पाया था। ये वो लिखा गया था रामायण में, जो सीता ने ऑर्डर किया था लक्ष्मण को राम को खोजने जाने के लिए। तो ये भी तो हो सकता था लक्ष्मण थोड़ा दूर जाके गाछ के अराल में खड़े होकर सीता जी को सिक्योरिटी देता, क्योंकि राम को कोई सिक्योरिटी ज़िंदगी भर लगा नहीं था। हम लोग सबको ही जानते हैं, क्योंकि इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। तो वो चैप्टर को क्लोज करके आज के चैप्टर में आते हैं। ये केस का शुरुआत उस जगह से होता है, एक फेक आईडी जो फेसबुक में दिया गया है। ये एक हिंदू लड़का है जिसके साथ एक हिंदू लड़की का प्रेम होता है, यहाँ तक तो ठीक है। बट हुआ ठीक उल्टा है, किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू का आईडी बनाकर इसके साथ प्रेम किया है। गलती यहीं से शुरू होता है। किसी लड़के को अपना आइडेंटिटी चेंज करके इंडिया में प्रेम करना ही क्यों पड़ेगा? अगर आप मुस्लिम हैं, आप तो किसी हिंदू से प्रेम कर ही सकते हैं, तो इसके लिए आईडी चेंज क्यों करना पड़ता है? इसका मतलब आपके दिल में, आपके सोच में कुछ खामियां हैं। तो इस केस में सबसे पहले साइबर क्राइम को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। फेसबुक में आप अपील कीजिए उन लड़कियों से जो लोग अभी मुस्लिम लड़के लोग के साथ प्यार कर रही हैं। हो सकता है ऐसे लाखों केस आए जिसमें 50,000 आईडी तो ओरिजिनल हो, तो उनको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अपने ओरिजिनल आईडी या ओरिजिनल पिक्चर्स देके लव कर रहे हों या सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हों लव प्लेटफॉर्म के लिए। बट 50,000 ऐसे भी आदमी हो सकते हैं, ऐसे भी लड़के हो सकते हैं जो फेक आईडी देते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे सहज पहला उपाय होगा, हर लड़की के लिए आप डिमांड कीजिए ऑन फेसबुक, जिन लोग दूसरे कास्ट के साथ प्रेम कर रही हैं वो क्या ओरिजिनल है ना कि फेक है। अगर पुलिस के साथ वो शेयर करती हैं तब जाके फेक आईडीज पकड़े जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम घर से शुरू होता है, हर क्राइम घर से ही शुरू होता है। इस लड़की के जो पेरेंट्स हैं ये लोग भी क्रिमिनल ही हैं, हर घर में ही क्रिमिनल है। पेरेंट्स लोग स्पेशली क्रिमिनल होते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम आपको जानबूझकर क्रिमिनल प्रमाण करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं मालूम होता कि हम लोग के बच्चे का फ्यूचर क्या है। आप लोग खाना पीना पिलाना, इंटरटेनमेंट करना, उसको 21 साल तक बड़ा कर देना, बड़ा करना नहीं होता है। वो भागती ही क्यों हैं? वो भागती इसलिए हैं कि आपसे बहुत बात कर नहीं पाती हैं। आपको एक डायरी बनाना पड़ेगा हर पेरेंट को, लड़की लोग के लिए स्पेशली, कि उसके साथ अगर गलत कुछ होता है, वो घर में आके शायद बोल नहीं पाती हैं, तो डायरी में डेट देकर लिख देंगी। अगर लड़कियां ऐसे कंप्लेन कर पाएँ अपने माँ लोगों को। अब माँ लोगों का प्रॉब्लम दूसरा होता है। माँ लोगों का प्रॉब्लम होता है अगर अपने ही फैमिली के किसी के अगेंस्ट में ये कंप्लेन हो, अगर उनको घर छोड़कर निकलना पड़ेगा तो वो जाएंगी कहाँ? आधे औरतें का जाने का कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम बाबली दी हेल्प सेंटर खोलना बोल रहे हैं। अगर अपने पाड़ा में आप 5,000 माँ महीने में 30 रुपया ही देती हैं, तो 1.5 लाख जो रुपया होता है, हर जो भी औरत घर से निकलना चाहती हैं, क्राइम के लिए निकलना चाहती हैं, कोई गलत हो रहा उसके लिए निकलना चाह रही हैं, बट निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि बाप का घर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हो सकता है वो गरीब हो ही सकता है।
तो हर आदमी को रिच बनाने का भी तो कोई पद्धति होगा। जैसे क्राइम कंट्रोल करने का एक पद्धति है, तो हर गरीब को धनी बनाने का भी एक पद्धति होगा। ये पद्धति शुरू होगा 30 रुपये से, बाबली दी हेल्प सेंटर जो हम लोग बोल रहे हैं। आइडिया मेरा है, बाबली दी इम्प्लीमेंट करेंगी आपके हाथ के थ्रू। तो हर पाड़ा में माँ लोग अगर एक होना शुरू हो जाए तो ऐसा कोई घर भी तो बन सकता है जहाँ पर जाके जो औरतें हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती हैं ताकि वो गलत हो या घर में कोई गलत हो जिसके लिए वो घर छोड़ना चाहती हैं, तो उसके लिए भी तो एक जगह लगेगा। हम कोई भी प्रॉब्लम सुनने के पहले ये सोचते हैं जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिर्फ प्रोग्राम बनाकर आपको दिखाकर उसका टीआरपी बढ़ाकर उसमें मसाला डालकर बहुत कुछ दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सॉल्यूशन निकालना है। गवर्नमेंट इतना व्यस्त रहता है अपना वो लाइट, ज़मीन, पानी ये सब लेकर कि वो लोग ये सोच ही नहीं सकते हैं। पुलिस और भी व्यस्त रहते हैं, हर पुलिस के हाथ में इतना केस रहता है कि उन लोग भी सॉल्यूशन लेके सोच नहीं सकते हैं। इसलिए जो लोग पुलिस में नौकरी नहीं कर रहे हैं और पुलिस का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि उसका भी फैमिली ठीक रहे, उसको 24 घंटे जैसे काम नहीं करना पड़े, तो पुलिस को भी हेल्प करना पड़ेगा। तो हर माँ को शुरू करना पड़ेगा एक डायरी जो लड़की लोग लिख सके। हर टीचर को एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि स्कूल में जो लोग घर में नहीं बता पाती हैं स्कूल में बता सकें। हर एक दोस्त को अपने दोस्त से पूछकर उसके पेरेंट्स को उसके स्कूल में बताना पड़ेगा। और पुलिस को फेसबुक में आकर ये बोलना पड़ेगा अगर ऐसा कोई आईडी आपके साथ प्रेम कर रहा हो जो दूसरे जात का हो तो उसको रिपोर्ट कीजिए ताकि उन लोग वेरीफाई करके बोल सके हाँ ये लड़का जेन्युइन है या तो ये लड़का जेन्युइन नहीं है। ये लड़की को घर में बाबली दी ने पहुंचा दिया, बट द क्वेश्चन रिमेंस, आज तो ये घर चली गई, कल क्या होगा? कल हम इसलिए पूछ रहे हैं अगर फिजिकल रिलेशन हो जाता है तब काफ़ी सारी लड़की उसको डेडिकेटेड रह के ज़िंदगी भर निभाने का कोशिश करते हैं जो लड़के लोग नहीं कर पाते हैं। जो प्रेम जो चीज़ शुरू होता है एक झूठ से, वो झूठ ही रह जाता है। इसलिए इस लड़की के लिए एडवाइस होगा जिसने आपके साथ झूठ बोलकर ये चीज़ किया वो विश्वास का पात्र तो नहीं हो सकता। और जो विश्वास का पात्र है वो सबसे पहले आपके घर में आएगा, बोलेगा कि आई लाइक योर डॉटर, आई लव योर डॉटर। आप भी उनके घर में जाके ये मिलिएगा। दो फैमिली का मिलन शादी होता है। अगर ये मिलन नहीं होता है फैमिलीज़ का तो मैक्सिमम ये चला जाता है क्रिमिनल केसेस में। तो आपके पुलिस स्टेशन की एक एफआईआर होके रह जाइएगा। हर लड़की को हम बोल रहे हैं आप लोग सोचिएगा ज़रूर से कि आपके एक पुलिस स्टेशन की केस हैं। जिस फादर मदर ने आपको इतना बड़ा किया उनके लिए क्या आप नहीं सोचिएगा? और सबसे पहले हम आपको सवाल कर रहे हैं, एक केस देख करके आप लोग भी सोने चले जाइएगा। आप लोग नहीं चाहिएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरे पीछे जैसे टूटा हुआ घर आप लोग देख रहे हैं, ये तो हमारे देश का ही घर है। इसको गवर्नमेंट नहीं रिपेयर करेगा, जिसका घर है उसी को करना पड़ेगा। वैसे ही आपको क्राइम सॉल्व करने के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर से दीजिएगा। नंबर आप लोग देख ही रहे हैं। हैट्स ऑफ टू बाबली दी। दिस विल बी ए सीरीज where we will be showing you how crime can be controlled, and I request PM and CM to issue a card and an assistant to Babli Di so we can solve more cases to help police, the lawyers, the courts. The lesser the crime, the lesser will be pressure on the courts and on the lawyers too. Save money of the government, so there will be less prisoners in the prison too. Thank you very much. বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যা পরিস্থিতি, সমাজের সামাজিক দিকগুলো দেখলে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স অর্থাৎ যারা পিআইএ পেয়েছেন, ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে, মিনিস্ট্রি অফ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, তো আমরা বিভিন্ন সোসাইটিকে, বিভিন্ন ফার্মকে, বিভিন্ন কনসালট্যান্টকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। তাদের প্রজেক্ট এনে দেওয়া, তাদের ফান্ড নির্মাণ করে দেওয়া, তাদের সমাজের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করার জন্য ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের তরফ থেকে, পিআইএর তরফ থেকে আমি এই প্রস্তাব রাখছি যাতে সমস্ত সোসাইটির সেক্রেটারিরা বা প্রজেক্ট যারা করেন বা যাদের চ্যারিটেবল আছে বা যাদের কনসালটেন্ট ফার্ম আছে তারা আসুন। আসলে তাদের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার, যত রকম প্রজেক্ট দেওয়ার আমরা দিতে বাধ্য থাকব। সকলকে অভিনন্দন রইল ইউনাইটেড ফাইন্যান্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে।